Assalamualaikum everyone. Thank you all for coming. मेरा नाम है हिरा बासित. मैं Digital Rights Foundation में काम करती हूँ. I'm the program manager for the cyber harassment helpline. So Pakistan में in this day and age, everybody has to be online, right? You have to have a phone. Especially COVID के बाद से सबकी requirement एक ज़रूरत बन गई है कि आपके पास फ़ोन हो, आप online हो, आपके पास खाना ऑर्डर करने से लेके अगर आपने कोई राइड बुक करानी है, अगर आपकी कोई कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने पढ़ाई करनी है, ज़रूरत बन गई हुई है कि ज़रूरत बन गई हुई है कि आप ऑनलाइन हो. लेकिन इट फील्स के अब जो है ना, हमें इस सिचुएशन में ऑनलाइन होने में हमें वी जस्ट बिन थ्रोन इनटू दैट. हमें कह दिया हुआ है कि go out, go use the internet, go use all these apps और ये फ़ोन ऑन करो. लेकिन किसी ने हमें ठीक से बताया नहीं हुआ कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो और क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं, क्या क्या स्कैम्स, क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं. सो लाइक आई सेड, आई एम द मैनेजर फॉर द साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन. और पिछले 6 सालों में we've had about 14,000 cases of online harassment that were reported to us. इस सब में ऑनलाइन स्टॉकिंग की बात होती है, ब्लैकमेलिंग की, थ्रेट्स की, फेक प्रोफाइल्स, इम्पर्सनेशंस की. बट वी नोटिस कि ओवर द पास्ट ईयर और सो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की भी केसेस बहुत हद तक बढ़ चुके हुए हैं. आई थिंक एंड दिस इज गोज सो देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन कि जी दिस सिर्फ औरतें या सिर्फ मर्द या सिर्फ बच्चे इनके विक्टिम्स होते हैं. दिस गोज ऑल अक्रॉस द बोर्ड. सो वी हैव आवर two experts here, each experts professionals in their own fields, and I will also pitch in my experience running the helpline कि यहाँ पे exactly क्या हमें problems face होते हैं, especially for young girls, especially for young women who have started using online platforms to really make a strong presence for themselves, especially for women entrepreneurs. You see young girls in this age doing so many businesses online. या तो वो पढ़ा रही हैं, tuitions दे रही हैं, they're running their cooking की वो classes भी दे रही हैं, but they're also running their home chef business, baking की businesses, कपड़ों के, jewelry के, you God knows what. But again, so we want to know exactly कि प्रॉब्लम्स क्या फेस आती हैं, व्हाट स्कैम्स एंड व्हाट फ्रॉड्स आर देयर. बिकॉज जितना ही आप एक प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हो, वहाँ पे आपके जो ऑफलाइन जो आपके स्कैम्स होते हैं वही दे स्टार्ट टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द ऑनलाइन वर्ल्ड एज वेल. सो आई एम गोना पास ऑन द माइक. आई एम गोना पोज यू गाइज अ क्वेश्चन कि इन योर ओन एक्सपीरियंस आपने क्या क्या देखा है इन योर पर्सनल लाइफ्स एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ कि किस तरह के स्कैम्स, किस तरह के फ्रॉड्स आ रहे हैं. And why do you think the people who fell victim to those, why did they fall victim? So उनकी क्या वो gaps थे जहाँ पे उन्हें देखा नहीं, उन्हें सोचा नहीं, ये कहाँ पे were they vulnerable to these things? So Dr. Saika, please, over to you first. Can you introduce yourself, please? Thank you very much, Hira. Yeah. Thank you very much, Hira. I'm Dr. Saika Imtiaz Asif. Currently, I'm working as Vice Chancellor, the Government Sadiq College Women's University, Bahawalpur. And it was in January, a girl walked in my office. She had a stricken expression in her eyes. The reason I focused on her eyes was that she was wearing a mask and she really looked scared. And she said that somebody is blackmailing me on phone and I'm really scared and I just don't know what to do. So I asked her to relax, and then she said that she said in December a WhatsApp group was formed. We all know that October is the month of breast health awareness, breast cancer awareness, and another soft point for the girls is the scholarships as well, because there are different kinds of scholarships and students want them. So she said that in December, several WhatsApp groups were formed, groups for scholarships and group for breast cancer awareness. And she said in that there was a person
with the name of Dr. Khamsa, and she said that if any one of you has any problem, you just contact me, tell me about the symptoms and all, and I'll give you professional advice. This girl has had some gynae issues, so she contacted the doctor, and the doctor asked her to send the pictures of her private parts. She said that I would like to examine, and without looking at those pictures, I won't be able to diagnose the problem. And then the girl sent those pictures to her, but then that person said, no, I want you to make videos like this and send pictures like this, pictures of your breast with your face and all that kind of a thing. And after she sent those pictures, the person said that I'm a man and I want you to come and see me and I'll meet you there and all. And he started blackmailing her. And then he also sent her the numbers of, her phone number was registered on her father's name. And he sent all the numbers that were registered on her father's name. And he said that, do you want me to send to make these pictures viral, and do you want me to send these pictures to your father? She got really scared and she contacted me. We had heard about women protection and in police stations and all, so we contacted them. They said it's a cyber crime thing and the privacy may not be ensured, so you'll have to contact the cyber crime wing of FIA. She gave somebody's number, the police station, the police officer gave somebody's number. They, we called them and they said that you'll have to send this online application. We did that, but we were told that it's going to take days for them to notice this application. This will be in a queue and you'll have to go to Multan to register the case. So with this chief security officer and 2 faculty members, I sent that girl, they composed an application and all. Again, she went and then, and those people said that we'll have to make a raid or uske baad ye hai ki then we'll be able to capture the guy. They came the 3rd day, the girl said, okay, come at this designated place, and they captured him, they arrested him. The girl had to go again. Again, I sent the chief security officer and the faculty members with her. They registered a case. But after a couple of days, the girl said that my father doesn't want me to pursue the case. And then, and the guy, the phone, when the police had his phone, what they saw were that there were 3,500 pictures and videos of different girls. And the guy the criminal had identified them with their names and educational institution. And he had made several WhatsApp groups with, he had 4 IDs and he was using 4 SIMs for those IDs. So in his wallet also, there was a blank check signed by a girl of a bank where the scholarships are deposited for the students. So this was it, and when the girl said that I don't want to pursue the case, she had to appear before the court, and then the court said that the judge talked to her in private. He said that he asked her if she was being pressurized by the educational institution. She said, no, but my family doesn't want me to pursue the case. And then the judge, because otherwise this crime is unbailable, and the judge, of course, gave him a bail the next day. Okay. So thank you for sharing that story. I'm sure as someone who feels responsible for all your students, and I can see that you deeply care about your students. So thank you. It must have been hard to go through that entire process and give support, because लोग इस तरह usually support नहीं करते. अगर हम देखा जाए अपने helpline के experience में भी, हमारे जो teachers, professors या हमारे boss होते वो in turn they victim blame you. Okay, again, the people that are around us say कि अच्छा ये इसी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना. नहीं, I feel in such cases though one shouldn't think twice. दूसरी दफा तो सोचना ही नहीं चाहिए ना. We have to support them, बस. Yeah.
So it's as simple as that. the second part of my question was, why do you think your student or like people in general, women in general, वो क्यों इन तरह के scams or frauds or even जिस तरह के requests में, why do they fall for these? क्या हमारी कोई awareness में problem है, हमें educate नहीं किया जाता, या हमें सही से technology, या what do you think? देखिए ना, ये वीक एरियाज है ना, मतलब सॉफ्ट उनके टारगेट्स हैं, बिकॉज अक्टूबर के मंथ में जाहिर है, एंड इतना ब्रेस्ट कैंसर इज अ किलर, आई मीन, और उसके बाद ये है कि इन साउथ एशिया हमारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, तो अब उसमें somebody sees this opportunity. सबसे पहले हेल्थ की फैसिलिटी, दैट गर्ल्स फैमिली लिव्स इन विलेज, इफ़ शी हैड अ प्रॉब्लम, जाहिर है उसने कहा कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी फ़ोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्लास के बने होते हैं, स्टूडेंट्स के बने होते हैं, और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद ये है कि स्कॉलरशिप्स भी, फाइनेंशियल इश्यूज़, नेचुरली बहुत से स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह के एरियाज़ हैं. बट ड्यूरिंग दिस कोर्स मैंने तो बहुत ब्रीफली बताया जो हमें a number of problems that we faced. Shall I tell? Sure. अब देखें, FIA के ऑफिस में when that girl went, the guy said that the person in charge said that we have got 13,500 cases, such cases registered in our station. अब 13,500 cases को उसके कितना वो परसू कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने फर्स्ट डे कहा कि एप्लीकेशन हमने कंपोज करानी है, ओके आप इनको लिखवा दें, और उस बच्ची के फ़ोन से डेटा लेके हम लोगों ने करना है, उसको भी प्रिंट करना है, एंड देन दे आस्क्ड फॉर 4,000 रुपीज़ जो कि कॉस्ट आई. तो हमने कहा कंपोज़र आपके नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमने आउटसोर्स किए हुए ये प्रोफेशनल टाइपिस्ट हैं जो अपनी फ़ी चार्ज करते हैं. और I think I think you're going towards my second question, so I'm gonna stop you right here. But I'm gonna pass the same question on to you, Anushe. Please introduce yourself. Sorry, and what kind of, because आप financial fintech world में you are that voice for us here. So financial frauds भी, just like I said, over the past year or so, especially मैंने अपने experience में देखा कि बहुत ज़्यादा राइज हुए हैं, and we were talking about the apps too earlier. So please आप बताएं कि आपने क्या क्या देखा है, and why do you think people are falling vulnerable to these? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनुशे नवीद अशरफ है. मैं एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी उड़ान के साथ काम करती हूँ, और हम वुमेन के फाइनेंशियल एक्सेस और एम्पावरमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. आई थिंक डॉक्टर साइका ने बड़ी विविड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो हरासमेंट की होती हैं या डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन की होती हैं, पर वहाँ से भी एक पहलू जो है कुछ ना कुछ फाइनेंसेस की तरफ आ रहा था. पर कुछ फॉर्मल सेक्टर में भी अब हम बहुत से फ्रॉड्स वगैरह देख रहे हैं. मैं क्योंकि कमिटीज़ या BCs अगर आपको पता हो उस अरीना में काम करती, तो आई टेक एन एग्जांपल वहाँ से. सबसे पहले आई थिंक पिछले दिनों काफ़ी एक बड़ा दिसंबर में बहुत बड़ा कमिटी फ्रॉड का केस हुआ था. शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी हो, बट जस्ट टू गो वेरी ब्रीफली ओवर इट, एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर थी, कमिटी वाली बाजी थी, जो कि जिन्होंने स्टार्ट आई थिंक छोटा किया, और बाय द टाइम दिसंबर में उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपन थे. वो 42 करोड़ ऑफ वेरी हार्ड अर्न मनी दैट वुमेन वर सेविंग, वो सब डिफ़ॉल्ट कर गई उस पर, वो मैनेज ही नहीं कर पाए. और बहुत से लोग उस पहलू में आए सामने, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ की कि कहाँ पे एक लाइफस्टाइल और मिसमैनेजमेंट, और कोई रिसीट्स नहीं थी, कोई ट्रांजैक्शंस की ट्रेल नहीं था. तो रिड्रेसल का भी जो कुछ हुआ, केसेस वगैरह हुए, बट उनमें कुछ उस तरह से प्रूव नहीं हो पाया. तो एक तो ये एग्जांपल कमेटियों में से ही फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह की देखी जा सकती है. मैंने उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया, और माइक्रो फाइनेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम
ये होती है अक्सर कि औरतों को पता भी नहीं होता उनका CNIC किसके हाथ में है। उनको पता भी नहीं होता कि ये मेरा CNIC किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, या फोटोकॉपी या कुछ भी। और कभी तो ऐसा होता है कि उनके ऑब्वियसली घर में ही उनके हस्बैंड्स या समबडी एल्स, फादर्स और ब्रदर्स, ऐसा होता है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का एक विमेन इंक्लूजन का बड़ा प्रोमिनेंट मिशन था, तो वो CNICs वो लेके उनके नाम पे लोन निकलवा लेते थे। और उन औरतों को पता भी नहीं होती थी, खबर भी नहीं होती थी कि मेरे नाम पे एक लोन चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी और कभी बार वो वापस आती थी और उनको जब बैंक्स रिकवरी के लिए पहुंचते थे तो कहती थी मुझे इसका इल्म ही नहीं है। एक तो ये होता है, कभी बार ऐसे भी होता है हम बहुत ट्रस्ट करते हैं हमारी कम्युनिटीज़ में कुछ लोगों को जिनको हम सोचे समझे बगैर अपनी CNICs दे देते हैं, तो वो मोहल्ले में कुछ कह लें कम्युनिटी लीडर्स ऐसी औरतें होती थी जिनको आई थिंक एक्टिविस्ट कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस की, उसमें वो अपने आप को एक्टिविस्ट के तौर पे वो करती हैं और वो जो है वो जाके कोई 10-12 औरतों की जाके CNICs दे देती हैं और उस पर लोन निकलवा लेती हैं और फिर लोन लेके कभी कभार गायब भी हो जाती हैं। पर उनके नाम पे क्योंकि लोन नहीं होता तो जो औरतें फंसी हैं जिनको पता भी नहीं था उनका CNIC किस लिए यूज़ हो रहा है, वो उधर आ जाती हैं। सो इस किस्म के काफ़ी केसेस लाइक अगर हम फ्रॉड के करें, आजकल बहुत एक ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लेंडिंग एप्स हैं। सो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी एक्चुअली, पर कुछ ऐसी लेंडिंग एप्स हैं जो प्रेडेटरी टर्म्स पे आपके से लोन ले लेती हैं, पर वो ना SECP रजिस्टर्ड हैं, ना उनके पास लाइसेंस है। बहुत से लोग जो है इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि वो एक्चुअली बहुत चाहते हैं कि इस किस्म की उनको इजी कैश या फाइनेंसेस मिल जाएं। इस वक्त बहुत मुश्किल है लोगों के लिए गुजारा करना, पर वो फिर इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे या आपके इतने कॉन्टैक्ट्स और इतनी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो फिर जाके सबको पिंग कर रहे होते हैं। अगर आपके सब खानदान में, दोस्तों में थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहे होते हैं, आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे होते हैं। इनकी कुछ गैप्स ऐसे ये हैं और उसमें कुछ रिड्रेसल शुरू हो गया जो आपका दूसरा पहलू था सवाल का। आई थिंक कल ही की न्यूज़ थी कि गूगल जो है वो SECP के साथ, PTA के साथ, इस किस्म की सारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जो लाइसेंस नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है ऐप्स वो ऑनलाइन हो ही ना सकें, ऐप स्टोर्स पे मौजूद ही ना हो सकें। पर जहाँ तक गैप्स की बात होती है, आई थिंक कुछ मैंने पहले ये कहा कि हमें शायद फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस में इतनी पीछे रख दिया जाता है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारी क्या टूल्स या क्या इंफॉर्मेशन किस तरह से यूज़ हो सकती है। हम जब डिजिटल से अब दुनिया बाहर नहीं निकल सकती, लाइक एवरीथिंग इज़ डिजिटल। सो हम पर जिस तरह से डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं उस पर क्या इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे हमारे बारे में मौजूद होती हैं, हमें कभी बार रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये किस तरह से कनेक्शन फॉर्म कर सकती हैं। लाइक डॉक्टर साइका की एग्जांपल में किसी को कैसे पता चलता है कि आपके इमीडिएट नेटवर्क में या एक वंस रिमूव नेटवर्क में फ्रेंड्स कौन हैं, किनके साथ आप जो है वो आपका रिश्तेदारी है या ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वी डोंट नो कि हम किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं एंड समटाइम्स वी रिवीलिंग टू मच। उसके अलावा आई थिंक फाइनेंशली जो है अवेयरनेस, क्योंकि औरतों के ख़ास तौर पर मुझे ये लगता है मैं भी बहुत डरती थी फाइनेंशियल टर्म्स में टिल माई स्टार्टेड वर्किंग इन द बैंकिंग टर्म्स। हमें शुरू से ही बता देता है कि women are not money savvy and you may make a bad decision, so trust the men around you, and often times money is used as a tool of control. So ऐसा होता है क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हम फाइनेंशियली किधर स्टैंड कर रहे हैं और किस तरह से हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस काम करनी चाहिए या कहाँ हमें अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना चाहिए। तो अक्सर हम इस किस्म के फ्रॉडुलेंट ट्रैप्स में फंस जाते हैं एंड समटाइम्स इट्स द पीपल क्लोजेस्ट टू अस दैट आर डूइंग इट। फॉर्मेलिटी, कोई रिसीट्स नहीं होती, हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहे हैं पर कभी कभार हम अपनी रिसर्च और होमवर्क नहीं कर रहे हैं कि किसी को हम अगर पैसे दे रहे हैं तो क्या उसकी रिसीट है मेरे पास, कोई रिड्रेसल की एक्चुअली कॉपी है कि मैं कह सकूं कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी या ये चीज़ एक्चुअली मेरे पास प्रूफ है।
So I think these are some of the ways, and I'll let you continue with the next questions, and I'm sure we can go into. No, that reminds me because हमें भी काफ़ी cases आते हैं. So the loan apps is particularly वो helpline पे काफ़ी वो because again cyber crimes go to the FIA, तो वो थोड़ी confusion भी हो जाती है. अच्छा ये FIA में जाएंगे, report हो सकती है, नहीं हो सकती, वो ये case लेंगे कि नहीं. But you also mentioned कि जी वो आपके app एक दफ़ा now once you download the app, so I think one of the things is कि हम जो है जो privacy policy है या जो हम permissions देते हैं apps को वो हम नहीं पढ़ते. So even for bigger apps जैसे Facebook वगैरह, we just हमसे agree to all, yes, I've read and accepted your terms of agreement. लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, so they can technically say कि हमने तो आपसे permission ली थी, you signed off. So what they do, what these apps do is they gain access आपकी contacts list में और आपकी gallery phone में जो आपकी gallery होती है. Now they have access, तो आपने लोन पे बैक कर दिया हुआ है नहीं किया हुआ, इट डजेंट मैटर बिकॉज उनका जो मकसद है, द होल एम ऑफ दोज एप्स इज़ टू कंटिन्यू गेटिंग मनी फ्रॉम यू. सो अगेन लाइक यू मेंशन हाई इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन आपने लेट्स से आपने 5,000 का लोन लिया, 10,000 का लिया, यू माइट हैव पेड ऑफ द लोन्स, लेकिन नाउ दे वांट मोर, वो और चाहते हैं. सो नाउ दे आर कॉन्टैक्टिंग योर रिलेटिव्स, आपके एक्सटेंडेड फैमिली कि अच्छा दिस पर्सन ओज मी मनी, ट्राइंग टू डिफेम यू इस तरह से. या फिर because they have access to your gallery, तो वो pictures sort of edit करना शुरू कर देते हैं. या फिर they're threatening, they'll send those picture to you whether it's आपकी the picture as it is, या फिर वो edit करके भी. This week we got a call from a woman who said कि now those people from those apps are messaging me, they edited my face on top of a nude picture, and they're messaging me कि जी मैं आपके आगे family वगैरह, I have their number, so now I'm going to send them if you don't pay me back my money soon. So again, so ये कि हम एक तो हमने पढ़े बगैर हमने we signed off our rights, our permissions, जो भी कहने, but also कभी कभार you don't even know. I think वो trust का भी वो issue आ जाता है कि if it's an online business, let's say you see an online store on Instagram or something, and then you buy something off of them, you've paid for it, and that product never comes. उसमें तो आप you're like मैं क्या ही कर सकता था, for because the only thing that you can do there is trust the other person, right? मेरे माइंड में एटलीस्ट वो नहीं आता कि क्वेश्चन कि oh where could I have been smarter, क्या मैंने कोई गलती की थी जिसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा हो गया. So these are questions where it's a very confusing space right now, and I know my question जो मैं pose कर रही हूँ कि जी why were these people vulnerable, it comes off across as a little victim blamey, but the thing is कि वो दोनों साइड से होता है, right? The perpetrators are also the ones who are doing this, लेकिन हमें भी एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. But moving on, आपके एक्सपीरियंस में, आप दोनों के एक्सपीरियंस में, जब ये चीज़ें आगे जाके रिपोर्ट हुई to the authorities, to the state authorities, or to your school, or like other educational institutions as well, तो वहाँ पे क्या क्या problems आती हैं? So उसकी investigation में, उस criminal को, perpetrator को पकड़ने में क्या problems आती हैं, उनको trace करने में और etc. और फिर finally उनकी punishment में क्या वो gaps हैं, क्या हमारे पास resources कम हैं, या फिर tech का मसला है जहाँ पे हम उनको track नहीं कर पाते. Like what are the patterns that you guys have noticed? रिसोर्सेज का यस, गवर्नमेंट के पार्ट पे भी रिसोर्सेज कम हैं और हम लोगों का सोशल सेटअप इस तरह का है. फॉर एग्जांपल टेकिंग दिस केस, दैट स्टूडेंट हैड द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. पूरे साउथ पंजाब में सिर्फ एक ऑफिस है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का. अ गर्ल सिटिंग इन राजनपुर, वो 7 घंटे सफ़र करके क्या अकेली आएगी रिपोर्ट करने के लिए? एंड वी वर टोल्ड कि शी हैज़ टू कम, उसको पर्सनली जाना होगा. अब वो अकेली आएगी और 3 दफ़ा और हर हेयरिंग में आना होगा उसको, इफ़ शी डिसाइड्स टू गो अहेड विद द केस एंड ऑल, और उसको लॉयर भी हायर करना होगा. तो ये ऐसी चीज़ें हैं, लाइक एक दफ़ा वो गई रिपोर्ट कराया, उसके बाद शी वेंट बैक, फिर उन्होंने व्हेन दे अरेस्टेड हिम अगेन मैंने कहीं से कहलवाया कि आप प्लीज़ रेड करें. दे चार्ज्ड अस फॉर द रेड, वी पेड फॉर इट बिकॉज अगेन गाड़ियाँ उनके पास, दे सेड गाड़ी है, पेट्रोल हमें नहीं दिया हुआ, हमारे पास कोई कंपोज़र नहीं है हु कैन कंपोज द एप्लीकेशन फॉर द गर्ल.
They had no composer. They can't meet the expense of the raid. For example, any place which is 7 hours away from Multan, the party or the FIA people have to go for the raid. They would drive for 7 hours and nobody would meet the expenses. They don't have the resources. और सबसे पहली चीज़ ये है कि वो लड़की अकेली पहुँचेगी. Would she dare go there and all that? उसके बाद ये है कि 2-3 दफ़ा तो उसने पेरेंट्स को भी नहीं बताया ना. और इफ़ शी इज़ लिविंग एट होम विद हर पेरेंट्स, वो कैसे अपनी एब्सेंस जस्टिफाई करेगी? रेड हुआ, द गाय वॉज कैप्चर्ड, शी हैड टू गो अगेन FIR के लिए. दोबारा अगेन यूनिवर्सिटी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर 2 फैकल्टी मेंबर्स गए. एंड देन दे सेड, आप सोच लें आप क्या परसू करेंगी केस, ओनली देन विल राइट एन FIR एंड ऑल. और उसके बाद आफ्टर 2 days FIR हो गई. द गर्ल बैक्ड आउट. शी सेड माई फादर डजंट वांट मी टू परसू दिस केस. वी सेड ओके, हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन देते हैं कि दिस पर्सन हैज़ कमिटेड अ हिनस क्राइम एंड ही इज़ ब्लैकमेलिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, बिकॉज उसके फ़ोन में एविडेंस है. बट वी वर टोल्ड दैट अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा केस वीक होगा, विक्टिम्स को आगे आना पड़ेगा. they'll have to testify against him, they'll have to identify the data and all, and nobody was willing. So that means that all these things are there. And then she had to appear before the court as well. How many girls would go and do that? ये सारे flaws हैं, ये सारे gaps हैं. We talk about women empowerment, we talk about making the laws, but law बना दें, what about their implementation? If the offense is non-bailable, the evidence is all there in his phone, even then victims have to testify, they have to pursue the case. And in, I think 99% cases, they don't. Thank you. So I think you've identified like 2-3 major problems here, right? एक तो ये है कि report करने के लिए ही you have to travel. And if अगर FIA या cyber crime wing जो है वो आपके city में नहीं है, तो you might have to travel anywhere between 2 hours to 5-7 hours possibly, depending on what your closest wing is. So एक तो ये उसमें आपकी travel. Not just once, several times you have to go. And if the case is registered on each hearing as well. And we actually, we talked to a lawyer, we said, okay, we want to pursue the case even if the girl backs out. She said, okay, no, we'll ask for her protection and all, persuade the victim, and I'll charge 1.5 million. I mean, neither the girl nor the university could pay 15 lakh to the lawyer. So these are the things, I mean, who would meet such expenses? Yeah. So traveling में ये आ जाता है कि जी आपके पास travel cost है, obviously. फिर because these are young girls, 19-20, that's the same age group that we cater to as well. I think हमारे पास जो सबसे ज़्यादा cases आते हैं वो आते हैं from age 18 to 30-35. So young women, again. जो कि और उनकी इंटीमेट पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है. दीज आर नॉट समथिंग दैट यू वांट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, बिकॉज अगेन विक्टिम ब्लेमिंग होती है, ऑनर इज्जत की बात आ जाती है एंड एवरीथिंग. एंड योर पेरेंट्स, योर फैमिली, इवन अगर वो एक्सेप्टिंग हो भी, अगर वो सपोर्टिव हो भी, लेकिन वो सोचना शुरू कर देते हैं ना, अच्छा लोग क्या कहेंगे, वो सोसाइटी की हमेशा बात आ जाती है. सो दे माइट हैव टू ट्रैवल अलोन. एक तो वैसे ही हमारे वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता लड़कियों को कि अच्छा वो अकेले जाके कुछ करें, बाज़ार तक तो जाने नहीं देते. देन यू मैंशन कि अच्छा बार बार आपको वो जाना पड़ेगा, सो इट्स नॉट. फिर प्राइवेसी की भी आई एम श्योर उनकी कंसर्न होगी कि अच्छा बिकॉज दैट्स समथिंग दैट पीपल एट द हेल्पलाइन स्पीक अबाउट टू अस द मोस्ट, कि कहीं मेरे घर वालों को ना पता चल जाए, कहीं मीडिया में बात ना आ जाए. मीडिया में बात, बिकॉज हमारी इमेज ही बनी हुई है कि जी पुलिस में एक दफ़ा आप केस कराओ तो मीडिया में आपका केस नाम भी चला जाएगा, फेस भी आ जाएगा, योर इंटायर स्टोरी. तो प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी की भी कंसर्न्स होते हैं. एंड यू मैंशन कि कोर्ट तक अगर बात लेके जाएँ, सो अगर कोर्ट तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो दैट बिकम्स पब्लिक रिकॉर्ड.
और वो जो पिक्चर्स जो वो छुपाना चाह रही थी, जो वो चाह रही थी कि वो पब्लिक रिकॉर्ड ना या वो कहीं वायरल ना हो जाए या वो किसी उसकी फैमिली तक ना पहुंच जाए, इस दे आर दोज पिक्चर्स बिकम पार्ट ऑफ योर एविडेंस, और वो एविडेंस जो है बिकॉज ऑफ देयर कोर्ट में है तो वो पब्लिक रिकॉर्ड वैसे ही बन गया। सो द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दैट केस वो तो थोड़ा नल हो गया, राइट? कि आप चाह रहे थे कि पिक्चर्स ना छुपे एंड इवेंचुअली दे गो आउट। और इस केस में अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल इज अ लॉयर एंड हिज फादर इज ऑल्सो अ लॉयर एंड दे हैव द बैकिंग ऑफ द बार काउंसिल एंड ऑल, सो दे वुड हैव I mean the girl's safety was at stake as well. Definitely. I mean the girls won't go alone to the court and pursue such cases. You also mentioned कि आपके पास legal recourse नहीं था, so that is also a problem. So transport, money and legal recourse, no one really knows how to fight these things. और आपको pro bono या even something affordable legal representation नहीं मिल रही थी. But we'll move on to Anushi. Like आपके experience में sorry, I'll just let you take it. For sure. So I think कि बहुत से obviously जब हम financial fraud या scams पे भी कहें, बहुत से issues काफ़ी overlap करते हैं, बहुत सी reasons काफ़ी overlap करते हैं, पर one of the things कि जो इससे भी शायद एक step पहले आता है, ना government bodies को ना इंसान को खुद पता होता है कि who is the right body or who is the right authority to go to. क्योंकि अगेन हम बहुत से इस किस्म के कर रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेसेस के बारे में कर रहे हैं, किसके अंडर आते हैं, कौन इस किस्म की चीज़ों को हैंडल करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड एप्स हैं या बिजनेसेस हैं तो उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, तो वो वहाँ पे ही रिकोर्स। सो अक्सर इस किस्म की जब, एंड आई एम श्योर यू माइट बी अ लॉट मोर अवेयर बिकॉज हेल्पलाइन पे आती होंगी इस तरह से कि कौन है जिसको हम जाके रिपोर्ट भी कर सकें, जो इसको हैंडल भी करेगा। that's one of the primary issues that I comes don't up. think the people themselves, those organizations themselves know. पुलिस वाले FIA के पास भेजे होते हैं, FIA वाले पुलिस के पास भेजे होते हैं, कोई कहेगा कि PTA का केस है, कोई It's no one really constant knows. shoveling. Yeah. Nobody knows. And unfortunately it exhausts the person to a point कि मैं redressal चाहती भी हूँ या नहीं, या मुझे मिल भी सकता है या नहीं। So I think इस किस्म की होती है। फिर स्पेशली जब आप फाइनेंशियल किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, बहुत सा बर्डन ऑफ लाइक कि आपके पास रसीदें थी, इनवॉइसें थी, कैसे ट्रैक कर लें। अगर आपने बिल्कुल कैश में वो डील किया है तो आप ये भी नहीं ट्रैक कर सकते कि अच्छा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। इनफॉर्मली बहुत सी ये चीज़ें हो रही होती हैं। सो आपके पास कोई पेपर ट्रेल भी नहीं होता, एंड वो लीगल रिकोर्स की आपकी आई गेस एविडेंस ही नहीं बन पाती। सबको अवेयरनेस होती है कि ये सब कुछ चल रहा है, बट आपके पास वो एविडेंस, वो ट्रेल, पेपर ट्रेल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बहुत सी इस किस्म की चीज़ें वो होती हैं। इन केस ऑफ बैंक लोन्स एक्चुअली पेपर पे सारी एविडेंस आपके हक में नहीं होती शायद उन औरतों के। So वो एक पेपर ट्रेल है जो anybody can, the bank will only look at that and they'll say कि यार मेरे पास तो यही information है और आप ही की information है। So it becomes a war of like who is right. And then obviously legal recourse seek करना financially बहुत burdensome होता है। Not all people can afford to actually go through lengthy redressal processes and all of that. So ये कुछ हमें financial side पे इस किस्म के इसके अलावा नज़र आते हैं कि gaps जो हैं। Okay, thank you. So now we've identified some of the gaps यहाँ पे, right? कि problem कहाँ आती है, why we fall victim to these scams and frauds, apps, what people who are out to get you. Then we moved on to कि अच्छा जब हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। आई वुड लाइक टू से यहाँ पे जस्ट लिटिल इंटरेस्ट कि रिपोर्ट करना प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूर हैं, लेकिन उनको फिर भी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम आप पहले बात कर रहे थे, आई रियली बिलीव विद द हेल्पलाइन कि हम जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो द स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस एज अ प्रॉब्लम। हम वरना अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि अच्छा लोकेशन की एक शहर में FIA का साइबर क्राइम विंग नहीं है, बट अगर वो कह रहे होंगे कि यार यहाँ पर कोई रिपोर्ट्स ही नहीं आ रही हैं, 1 या 2 रिपोर्ट्स है, तो हम यहाँ पे क्यों विंग खोलें, राइट?
सेम विद फाइनेंशियल फ्रॉड, यहाँ पे तो कोई केसेस ही नहीं आ रहे, तो फिर वाई शुड वी ओपन? बट जब तक रिपोर्ट करेंगे, आई नो हमारे माइंड में होता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ख्वारी होगी, बहुत मेहनत लगेगी, श्योर लेकिन जब तक वो रिपोर्ट्स नंबर्स वो क्लाइम नहीं करेंगे, अच्छा 100, 200, 300 रिपोर्ट्स आ रही हैं, देन द स्टेट वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज कि अच्छा दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू, बिकॉज इट्स बिकम बिग एनफ प्रॉब्लम कि हमें अब इसको एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ गई है. सो इट्स ऑलवेज आई थिंक अ गुड आइडिया टू रिपोर्ट इट, इवन इफ it takes a lot of out of you, even if you think there's nothing's going to become of it, but I still think that it's very important to just get out and report the issue to the people who need to solve it. But coming back to our last question now, because I think we need to start wrapping up. But now what is the responsibility on us now? हम अपने पर्सनल लाइफ में हम ऐसी क्या सेफ प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हैं, क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज यू हैड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and you are part of the financial I'm not sure if this is corporate or but लेकिन हमारे workplaces में हम ऐसी क्या क्या practices adopt कर सकते हैं, not just for ourselves but for the people that we are responsible for. What can we do to make our online spaces a safer place for young women, young girls, for everyone really? हम इस तरह की क्या क्या practices adopt कर सकते हैं? Like in this case, so far we have talked about how to protect the victims. What about the people who are, the criminals who are doing all this? उन पे भी तो focus करना है ना, वो भी तो हम जैसे इंसान हैं, वो क्यों कर रहे हैं? We have to address that as well, कि हम लोगों को अपने ethics पे focus करना होगा. Suppose we are protecting the girls, रिपोर्टिंग भी नहीं है. जैसे मैंने कहा, साउथ पंजाब में जो एक ऑफिस है, they have 13,500 cases and they can't pursue all. एक के लिए भी मुझे एजेंसी से कहलवाना पड़ा, उसके बाद they went for a raid because they can't go after all these. मसला ये है कि हमें men who are indulging in this kind of activities, उस पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि उनके एथिक्स को एड्रेस करना होगा. एज पेरेंट्स, एज सिस्टर्स, एज ब्रदर्स, हम लोगों को इन लोगों की माइंडसेट्स चेंज करने होंगे. एज एजुकेशनिस्ट अगर माइंडसेट्स चेंज होंगे कि भाई रिस्पेक्ट है, इस तरह से ब्लैकमेलिंग, ये चीज़ें, इफ़ समबडी, कई दफ़ा फियांसीज या फ्रेंड्स, बाद में दे रिलेशनशिप टर्न सावर और उसके दे दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस ख़त्म करनी होंगी और एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस. बिकॉज ये बहुत आसान था, कोविड में जैसे था, व्हाट्सएप ग्रुप ढेर बन जाते थे. यंगस्टर्स वर सिटिंग एट होम, दे वर कन्फाइंड टू देयर होम्स, तो डिफरेंट ग्रुप्स बन जाए एंड पीपल विदाउट इवन थिंकिंग, if somebody would invite you to be a part of that group, the students would become, youngsters उस group का हिस्सा बन जाते हैं. और उनको बिल्कुल नहीं, छोटे थे आप लोग या हम लोग जब छोटे थे तो पेरेंट्स यही कहते थे ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं नहीं जाना, और बार बार कहते थे. तो इसमें भी यही है कि अननोन व्हाट्सएप ग्रुप्स, इवन अननोन में भी दिस गर्ल सेड कि उसमें तो मेरी सारी बहुत सी यूनिवर्सिटी की गर्ल्स भी थी. अब उस ग्रुप में 308 लोग थे जो ब्रेस्ट हेल्थ अवेयरनेस की थी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत से जानने वाले थे. तो शी सेड कि ये ठीक होगा, मगर उसमें भी इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें अवेयरनेस देनी होगी अबाउट जॉइनिंग सच ग्रुप्स ब्लाइंडली. और उसके बाद ये है, हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि इसको फर्दर सहल बनाए, इसको आसान बनाए, बिकॉज रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस, परस्यूइंग दोज केसेस, और लॉयर्स कम्युनिटी में भी आई वुड रिक्वेस्ट के ना उसमें भी आकर वॉलंटियर्स हों who should help basically, who should help people who can't afford this legal aid, उनको मिलनी चाहिए. Thank you. So you've mentioned a few good points, especially the one that I'd like to expand on is कि आपने जो ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से आप जो बात करते हो या उनसे इंटरेक्ट करते हो, आई फील लाइक ऑनलाइन स्पेसेस में भी अब आई थिंक इट्स
ज़रूरी हो गया पर ऑल्सो आपकी सोशल लाइफ का पार्ट बन गया, राइट, टू बी एबल टू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। लेकिन फिर आपने ये ज़रूरी होता है देखना कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से कितना उनको बता रहे हो, कितनी क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में उनको दे रहे हो। सो जैसे पिक्चर्स या फिर आप कहाँ रहते हो, किसके साथ आपका सबसे ज़्यादा मिलना जुलना है, आपकी अगेन यू नो आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन। You can share your thoughts, your ideas and stuff, that's great, but again you have to be safe कि अच्छा what if this person might be able to get to me. The other thing that you mentioned was, I'll expand on it later, but yeah, over to you. For sure. So I think before I go to the part कि हमें अपने आप को protect करने के लिए क्या होता है, हमें बहुत important, especially when we're talking about financial fraud, हमें ये दिमाग में रखना बहुत important है ये कि isolation में नहीं हो रहा, especially when women के इर्द गिर्द। Unfortunately हमारी financial institutions जो हैं वो access to finance के इर्द गिर्द औरतों के लिए solve ही नहीं कर रहे। एंड आई विल से कि पहले पिंक लेबल अकाउंट्स होते थे, पर अब फॉर एग्जांपल एक शगुफ्ता, एंड आई होप दिस इज़ अ मेड अप नेम, इट्स नॉट मेंट टू बी, पर सम यू नो नेम दैट जो है जेंडर एसोसिएटेड नाम होगा या कुछ इस तरह होगा, शगुफ्ता अकाउंट हो जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि अच्छा आप 500 डाल लें, पर डॉक्यूमेंट्स आपको फिर भी ऐसी 6000 शायद 6000 नहीं, पर मतलब आपको 5 ऐसी डॉक्यूमेंट देनी है जो आपके पास एक्सेस नहीं और आपके नाम पे भी नहीं है शायद। सो आई थिंक कि हमारी इंस्टीट्यूशंस पे भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी बियॉन्ड जस्ट पिंक लेबलिंग एंड पुटिंग अ नेम अटैच टू अ बैंक अकाउंट जो कि डिनोट औरतों को करता है, वो एक्चुअली जाके उस फाइनेंशियल एक्सेस को करें, बिकॉज अगर आपको फाइनेंशियल एक्सेस है ही नहीं तो आप डेफिनेटली इनफॉर्मल चीज़ों को और ज़रियों को अख्तियार करोगे। इस वक्त कमेटीज़ की मैं बात करूँ, 40% ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमेटियों के थ्रू सेव कर रहा है। उनके पास और कोई, और इन औरतों के पास और कोई वे ऑफ फाइनेंसिंग है ही नहीं। सो एक तो ये, दूसरी चीज़ आई थिंक आई विल से, एंड ये बहुत बेसिक लगती है, बट वी हैव प्लीज़ अपना पासवर्ड या पिन कोड 1 2 3 4 मत रखिए और हर चीज़ का सेम 4 पिन पासवर्ड मत रखिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट। एंड ये लगता है कि नहीं कौन रखता होगा, पर बहुत से लोग ऐसे पासवर्ड्स रख लेते हैं जहाँ पे लोगों के सामने शेयर कर देते हैं। एक और चीज़ ये है कि किसी पे भी आप, कोई भी इदारा जो रजिस्टर्ड हो, जो फॉर्मल हो, जो रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनके एक तो ये कि किसी प्राइवेट नंबर से या रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपको कॉल करके कभी भी आपकी पिन कोड नहीं मांगेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से नहीं मांगेंगे, हमेशा ऑफिशियल नंबर से आएगी। एंड प्लीज़ बी वेरी, कभी कभार अब तो कुछ लेंडिंग इलीगल ऐप्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो रिनोन्ड ऐप्स की कॉपीज़ हैं, उन्होंने उनका लोगो हल्का सा कॉपी करके इधर उधर कर दिया है, सो पीपल आर एक्चुअली गेटिंग फूल्ड कि ये एक्चुअल ऐप है या प्रेडेटरी लेंडिंग ऐप है। सो कुछ इस किस्म की रिड्रेसल्स की बहुत ज़रूरत है। हमेशा चेक करें अगर आप किसी बिज़नेस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कहीं पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या वो रजिस्टर्ड हैं, क्या, एंड आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्पेशली व्हेन वुमेन आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस, राइट, क्योंकि उनके पास शायद बैंक अकाउंट्स होंगे भी नहीं, पर डू योर रिसर्च, रिव्यूज़ पढ़ें और लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ें। अगर किसी जगह की सिर्फ 2 लाइक्स हैं तो देर प्रॉबली नॉट लेजिट। A lot of these things, always ask for receipts, paper trail जितना आप लोग maintain कर सकते हैं उतना करें, and I think these are some of the ways that we protect ourselves online, जो कि हम भूल जाते हैं, बहुत छोटी लगती हैं पर हम अक्सर वो नहीं कर रहे होते। and one of the biggest things is कभी कभार हमें receipt आती भी है, हम रखते भी हैं, पर हम WhatsApp पे मिलती है या कहीं online होती है, हम delete कर देते हैं। Please keep all of your records on you, download them somewhere. उनका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वंस इट्स गॉन तो फिर आप जितना भी कहते रह जाएं उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। Those are some excellent points. Actually, आपके last point पर I'd like to expand. Never delete anything, basically. आपने अपने फ़ोन में से delete करना है, आप कहीं और सेव कर लो. This especially applies to young women who are being harassed, or not everyone who is being harassed online in any way, especially अगर आपको कोई threats मिल रही हैं, bullying हो रही है, blackmail हो रही है, कुछ भी. I've noticed so many girls
who call us and then they say कि oh I don't have any evidence because मेरे डर के मैंने सब कुछ delete कर दिया. So basically even if they had a case, अगर वो जा भी सकती थी, they could have caught the perpetrator, लेकिन अब they have no evidence, उन्होंने सब कुछ delete कर दिया होता है. So financial receipts, everything, but also for like you know personal safety, आपने अपने फ़ोन में नहीं रखना, save it somewhere else. The passwords was a great thing. हम usually ये करते हैं कि अपने सारे accounts के एक ही password रखते हैं, या फिर you said would the 1 2 3 4 but it's also Pakistan 1 2 3 जो बहुत basic होता है. I think that's my dad's password maybe. But so these are basic things, you know, capital letters, small letters, special characters apply करना, make it a phrase not a word, अपने बहन का नाम ना use करो, अपनी date of birth ना use करो, very basic things like these. लेकिन हम सारे we never think about these and we never think कि जी हमारे साथ कभी कुछ ऐसा होगा. I still don't, and I was I think I was telling you, okay, I mean, I was about to fall victim to one of those financial bank case scams, like, even though I work in this field and I know what's going on. So, but I think we're running out of time. Thank you so much for being here. Thank you so much for telling us about your experiences. And I just like to quickly wrap up, थोड़ी सी self promotion भी कर दूँ. We do have like places where we can turn to for help if we are facing cyber crimes. But if you ever feel scared, if you feel the need that you don't that you need to know more, that you don't know enough, आपको थोड़ी सी और help चाहिए. I think हमारे कुछ brochures भी distribute हुए थे, but we run the cyber harassment helpline, जिसका number है 0800 39393. We provide free legal services as well, especially in Lahore. हमारी legal team होती है जो आपको accompany करती है, but we also give you digital security support as well as psychosocial well-being support. I'd like to thank you again, and I'd like to wrap this up. Thank you for attending our event, and I hope that this was very informative for you. Thank you guys.